तो हेलो स्टूडेंट, दिस इज मी हेमंत सर और आज हम जेई एडवांस 2023 का और एक क्वेश्चन करेंगे. ठीक है. सो नाउ दिस इज अ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन. ओके, लेट्स सी द पैराग्राफ देन. Now here it starts with a trinitro compound which is 135 tris 4 nitrophenyl benzene on complete reaction with an excess of SN. So यहाँ पे ये अपना first reactant which is SnHCl. We know that's a reduction reaction. Gives a major product which on treatment with excess NaNO2 HCl. Again ये वाला reagent भी हम जानते हैं, it's used for diazo reactions, right? ये सब करने के बाद अपने को मिलता है we get a product P. Alright, ठीक है. Now further reaction of that product P will be upon treatment with excess H2O. So the further reagent which we are using is H2O. Excess H2O we are using at room temperature gives a product Q. तो पहले P मिला, right? Then P को further excess H2O के साथ react करके we are getting this Q compound, Q product. Bromination of that Q in let's say aqueous medium furnishes the product R. So again bromination is the further reaction, ठीक है, with Q and it's going to give you a product R. तो P मिला, Q मिला and R मिला, right? The compound P further upon treatment with an excess of phenol. तो excess of phenol के साथ फिर से P वाला ही reaction है, under basic conditions gives you product S. तो अपने पास ये P, Q, R, S ऐसे 4 products मिल जाते हैं, right? Now all depending on all this reaction system, what we have to find out, again यहाँ पे एक छोटा सा hint भी दे रखा है. Molar mass difference between compound Q and R is 474 grams per mole and between compounds P and S is 172.5 grams per mole. All right, ठीक है, ये hint दे रखा है. Let's see कहाँ पे काम आता है भी है या नहीं, ठीक है. And depending on this we have this question. All right, so the first question, okay, पहले reaction देख लेते हैं, right? So the reactant is this 135 tris 4 nitrophenyl benzene. So let's draw the reaction. Reactant कुछ इस तरीके से होगा. We are having one benzene, उसको अटैच होंगे ये 3 phenyl groups, and these phenyl groups are attached with nitro groups. ठीक है, getting me? This is your reactant 135 tris 4 nitrophenyl benzene. 135 tris 4 nitrophenol benzene. Now we have to carry out the reaction. The first reaction is with SN and HCl. SnHCl के साथ reaction है. We know that this is going to be a reduction reaction. So what are we going to get? यहाँ पे ये reduction होगा NO2 का. NO2 will convert into, of course, amine molecule, right? ठीक है, तो we'll carry out this reaction like this. Let's say we'll take the same reactant. और ये जो सारे NO2 है that will be get converted into NH2 molecules, amino groups. So nitro group convert reduce होगा NH2 amino groups में, ठीक है. ये अपना पहला रिएक्शन हो गया. So I'll just check one of the reactions. Further again this is going to be give you a major product. Further treatment is with NaNO2 and HCl. तो ये जो product बना है we have to carry out this reaction with NaNO2
NaCl. Now we know this is a diazo reaction. Getting me? ठीक है, डाइजो रिएक्शन है ये एट ऑफ कोर्स 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो सारे अमीनो ग्रुप्स है यहाँ पे ये एक्ट करेगा, दिस नाइट्रोजन विल अटैच ओवर हियर एंड ये डाइजो ग्रुप्स में कन्वर्ट हो जाएगा. सो आई विल show the reaction something like this. Now this NH2 groups are going to convert into N2 plus Cl minus groups. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे N2 plus Cl minus, N2 plus Cl minus, ये अपना एक डाइजो डेरिवेटिव हो चुका है. ऑलराइट, ठीक है, दिस वाज द स्टेटमेंट. यस, ये दोनों रिएजेंट्स हो गए. ठीक है, नाउ एट द एंड ऑफ दीज टू रिएक्शंस व्हाट वी वर गोइंग टू गेट टी. तो अपना ये जो कंपाउंड बना है, दिस कंपाउंड इज नथिंग बट योर प्रोडक्ट पी. ये ध्यान में रखना है. क्लियर है? वेरी गुड. अब फर्दर पी अपॉन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर गिव्स प्रोडक्ट क्यू. तो देख लेते हैं क्या है. Now this product P ठीक है, ये प्रोडक्ट P जो है, जस्ट हाईलाइट ओवर हियर, दिस इज योर प्रोडक्ट P. अब इसका रिएक्शन हो रहा है एक्सेस वाटर के साथ. ठीक है, सिंपली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, H2O OH लिख सकते हैं. ये जो OH है यहाँ पे अटैक करेगा, ये पूरा ग्रुप यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा. सो दिस डाइजो कंपाउंड विल बी नाउ टर्न इनटू अ, करेक्ट, यस, इट विल बी कन्वर्ट इनटू अ फिनॉल कंपाउंड, फिनॉल डेरिवेटिव. तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं. दीज डाइजो ग्रुप्स विल नाउ बी रिप्लेस्ड विथ फिनॉल ग्रुप्स, OH 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 एट these positions. ठीक है, अब ये जो अपने को कंपाउंड मिला था, that is going to be our product Q. सही है, तो इसका हम नाम देते हैं प्रोडक्ट Q. ऑलराइट, ठीक है, फिर देख लेते क्या है. नाउ ब्रोमिनेशन ऑफ Q इन एक्वस मीडियम फर्निशेस प्रोडक्ट R. ठीक है, प्रोडक्ट Q का अगर हम फर्दर ब्रोमिनेशन करेंगे तो हमको R मिलता है. Right, so we'll take up this Q. We'll start off with Q again. Bromination करना है. We are using excess of Br2. This reaction is nothing but bromination. ठीक है, क्या डिफरेंसेस होंगे यहाँ पे. नाउ वी नो दैट जब भी फिनॉल, व्हेनेवर वी कंसीडर फिनॉल, ये जो ऑर्थो वाले पोजीशंस होते हैं वो हाईली एक्टिव हो जाते हैं. हेडिंग में ये वाले पोजीशंस, ठीक है, ये हाईली एक्टिव हो जाएंगे. ऑलराइट, ठीक है, तो यहाँ पे इन पोजीशंस पे क्या होने वाला है, ब्रोमिनेशन होने वाला है. So simply will carry out bromination in सारे positions पे. Will join bromine now. So bromination of this compound Q, product Q, is further what we are getting is product R. ठीक है, यहाँ पे हाईली एक्टिव जो ऑर्थो पोजिशंस होंगे वहाँ पे ब्रोमीन्स अटैच हो जाएंगे. ठीक है, नाउ लेट्स सी अगेन, वी आर डन विद गेटिंग R. ठीक है, नाउ अगेन एक सेपरेट लेन में वी आर डिस्कसिंग दैट द कंपाउंड P इनिशियली व्हाट वी हैव कैरिड आउट रिएक्शन फॉर,
कंपाउंड P अपॉन ट्रीटमेंट विथ एन एक्सेस ऑफ फिनॉल अंडर बेसिक कंडीशंस गिव्स यू प्रोडक्ट S. तो P वाला जो कंपाउंड था, दिस इज P. अगेन इफ यू कैरी आउट रिएक्शन ऑफ एक्सेस फिनॉल विथ इट, ठीक है, क्या करना है, एक्सेस फिनॉल के साथ रिएक्शन करना है, ठीक है, गेटिंग मी. अगेन इन बेसिक कंडीशंस, लेट्स से KOH will consider over here as a basic reagent, ठीक है. Now I'll tell you how it works. ये फिनॉल है, गेटिंग मी. नाउ दिस इज गोइंग टू बी अटैकिंग ऑन दिस नाइट्रोजन, ठीक है. ये Cl यहाँ से निकल जाएगा एंड दिस कंप्लीट फिनॉल ग्रुप विल बी अटैच ओवर हियर. तो अगर इफ यू हैव टू कंसिडर दिस, I'll tell you how it will be looking. ये अपना स्टैंडर्ड P है, राइट. नाउ ये नाइट्रोजन जो है इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ. सो दिस नाइट्रोजन N2 विल बी लुकिंग लाइक दिस एंड दिस इज गोइंग टू बी अटैच्ड विद अ फिनॉल मॉलिक्यूल. गेटिंग मी. Cl इज रिमूविंग सिंपली ओवर हियर. तो यहाँ पे ये N डबल बॉन्ड और ये अटैच है फिनॉल को. सिमिलरली N डबल बॉन्ड, दिस इज अटैच टू अ फिनॉल ग्रुप, ठीक है. एज द क्वेश्चन सेज दिस इज योर प्रोडक्ट S. तो जो फाइनल प्रोडक्ट में हमको मिला है दैट इज S, ठीक है. फिलहाल के लिए ये वाला पोर्शन थोड़ा साइड में रख लेते हैं. नाउ वी हैव गॉट P, Q, R एंड S, ठीक है. दीज वर दी मेजर प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस होल रिएक्शन, ठीक है. अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे. क्वेश्चन इज नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ R. हेटेरो एटम्स मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कौन से एटम्स है वो हमको यहाँ पे चेक करने हैं, ठीक है. दे हैव ऑल्सो मेंशन्ड इट ओवर हियर. एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कंसिडर्ड एज हेटेरो एटम्स. तो यहाँ पे विल सी वेयर इज R. या R इज राइट ओवर हियर. अब यहाँ पे ये 3 ऑक्सीजन्स, दीज आर हेटेरो, ऑलराइट. और ये 6 ब्रोमीन्स जो है दोज विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज हेटेरो, राइट. बाकी जो पूरा स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है, दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इटसेल्फ, तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है. तो वेन एवर वी हैव टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, इसका आंसर आएगा 9. 9 atoms are hetero in nature for particularly R product. Getting me? There is one more question based on the same paragraph, which is the total number of carbon atoms as well as hetero atoms present in one molecule of S. तो यहाँ पे S अपने पास है, राइट, ठीक है. अब अगर कार्बन एटम्स हम ढूंढेंगे, सो इफ यू कंसिडर वन बेंजीन रिंग, यहाँ पे ये 6 कार्बन एटम्स है, ठीक है. यहाँ पे भी 6 होंगे, यहाँ पे भी 6, here also there will be 6, and we are also having this phenol groups. तो हर एक फिनॉल ग्रुप्स के भी हमको कंसिडर करने पड़ेंगे, ऑलराइट, ठीक है. सो हाउ मेनी टोटल कार्बन्स वी आर गेटिंग? वी आर हैविंग 1 2 3 4 5 6 and 7 benzene rings. तो we'll consider 6 into 7, which is 42. So there are 42 carbon atoms in the product S, ठीक है. The next question is again heteroatoms. तो heteroatoms is quite easy to know now. हेट्रो में क्या क्या आएगा? ये 2 नाइट्रोजन, these 2 nitrogens, these 2 nitrogens, ठीक है, 6 एटम्स हो गए. एंड अगेन फिनॉल से एक एक ऑक्सीजन आ जाएगा. दिस विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज हेट्रो एटम्स. तो टोटल 9 हेट्रो एटम्स, 9 हेटेरो एटम्स, ठीक है.
तो ये पैराग्राफ फॉर्मेट वाले 2 क्वेश्चंस हमने आज कर लिए. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. ठीक है. अगेन यहाँ पे ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड अगेन द बेसिक फंडा ओवर हियर इज टू लुक टू द कंपाउंड. अगर स्ट्रक्चर में आप कहीं पे भी कुछ भी मिस आउट कर देते हो, बिकॉज अगेन इट इज इट्स रियली डिपेंडिंग ऑन हाउ यू काउंट द एटम्स. अल्टीमेटली जो अपने पास क्वेश्चन था दैट वाज जस्ट बेस्ड ऑन काउंटिंग, राइट. ठीक है. बट उसके लिए हमको बहुत सारी रिएक्शंस कैरी आउट करने थे. गेटिंग मी. ठीक है. तो वो अच्छे से आपको आना चाहिए. ईच एंड इंडिविजुअल रिएजेंट को पहचानना आपको आना चाहिए, सो दैट यू विल बी गेट अ स्ट्राइक कि हाँ ये इसका प्रोडक्ट यही बनने वाला है. गेटिंग मी. तो कोई भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स देख के, रिएक्टेंट्स देख के घबराना नहीं है. इट्स रियली सिंपल. आपके बेसिक्स से जुड़े रहो, आपके जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, एंड देन यू आर गुड टू गो. ठीक है. सो येस, दिस वाज द क्वेश्चन. आई होप you have understood again, and I'll see you next time. Thank you so much for watching. Bye bye.